Hello students, welcome to your biology class. I hope all of you are safe and healthy and following the instruction issued by the government agencies to keep yourself safe and healthy. In today's class we are starting a new chapter, that is chapter number 5 of your biology textbook, Principles of Inheritance and Variation. And before starting this chapter, I want to make you familiarized with some important terms. First term is genetics. Genetics is the branch of life science which deals with the study of heredity and variations. Now, what is heredity? Heredity is the phenomenon by which characters are transferred from parents to offspring, or from one generation to another. This is also called inheritance. Second term is variation. What is variation? Variation is the occurrence of differences among the individuals of same species or offspring of same parents. These differences are called variations, and in sexually reproducing organisms, these variations are caused due to meiosis. The term genetics was coined by Bateson. Next term is gene. This term is proposed by Johanson. Gene is the particular segment of DNA which controls a specific character, of which contains the information about the synthesis of a particular polypeptide. That particular segment is called gene. Next term is alleles or allelomorphs. This term was proposed by Bateson. Each gene has got two alternative forms which are present. Before starting the exercise 6.3, let us try to understand the theory in this topic and see how the derivatives are associated with this topic, tangents and normals. So this is a curve and its equation is y is equal to fx. There is a point on this curve whose coordinates are x1, y1, and taking this point as the point of contact, a tangent has been drawn. So if you differentiate this curve y is equal to fx, you differentiate, you will get dy by dx. That will be ultimately equal to f dash x, and this derivative of this curve or derivative of this function is actually the slope of this tangent, tan theta, right? More specifically, the slope of this tangent, the slope m of this tangent is equal to dy by dx of this curve at the point of contact. x1 is equal to x1, y is equal to y2. Ultimately, what I want to say, that the equation of the curve will be given to you. You need to differentiate this, and in this derivative dy by dx, substitute the coordinates of the point of contact, and whatever you will get from here, that will be the slope of this tangent at this point of contact. Okay, this is the ultimate theory. We have to differentiate, and then we will be able to find the equation of the tangent. For that, we have to make use of the point slope form that we have studied in class 11. You must remember that is written y is equal to y minus y1 is equal to mx minus x1, right? Where x1 comma y1 are the coordinates of one point, any one point on the line. So you can take that point as this, the point of contact of the tangent, and this m, it is the slope of the tangent. The slope of the tangent can be obtained by differentiating this equation of the curve, and in this derivative we have to put the coordinates of the point of contact. So in place of m, you can write this. So this will be ultimately the equation of the tangent, and similarly you can find the equation of the normal also, because normal, this is the normal. It is perpendicular to the tangent, and it is also passing through the same point of contact, x1, y1. So this will be the equation of the normal also. x1 and y1 will remain same, the coordinates of the point of contact. Only the value of m, the slope of the normal, will change. First you have to obtain the equation, the slope of the tangent by this, and then here in place of this m, you have to put the negative reciprocal of this. Why negative reciprocal? I think you will understand.
because normal is perpendicular to the tangent. Suppose the slope of the tangent comes out to be 1 upon 2, and then the slope of the normal will be minus 2. Is it okay? So this minus 2 is to be substituted here in place of this. So in this way we can get the equation of the normal. This is the theory. Once again, let me remind you that the slope of the tangent can be obtained by differentiating the equation of the curve, and in this derivative we have to substitute the coordinates of the point of contact. Then you will get the slope of the tangent. Fine. And now we are in a position to start the exercise 6.2. Now we derive the expression for electric potential due to a dipole. So you know the dipole is a system of two equal and opposite charges placed at a very small distance. We take the dipole length as 2a. Now the point at which the potential is to be determined by the electric dipole is P, and its distance is R from the center of the dipole. So first we write the expression for the electric potential due to minus Q at P plus Q at P, and we take the algebraic sum. As you know, the electric potential is a scalar quantity, so we take the algebraic sum of the two potentials. First we write the electric potential due to minus Q at P. It will be given by B1 1 upon 4 by epsilon naught Q by R. What is wrong with this? Is it correct? No. Because electric potential is a scalar quantity, so we have to consider the sign of the charge. So correct expression will be V1 is equal to 1 upon 4 by epsilon naught minus Q by, instead of R we will take, what is the total distance? Minus from the minus Q to P, it will be R plus P. Similarly, we will write the electric potential due to plus Q due to plus Q at P. It will be V2 1 upon 4 by epsilon naught Q. What is the distance of P? That is the plus Q to P. Total distance is R. So R minus A is V2. Now the total potential at P due to dipole. Potential at P due to the dipole. So it will be V1 plus V2. We put the value of V1 and V2. Take 1 upon 4 by epsilon naught Q common. So expression will be like 1 of Q upon 4 by epsilon naught minus 1 upon R plus A. Plus 1 upon R minus A. Now we take the LCM.
solve the expression. So V is equal to take the space. Now U is equal to Q upon 2 pi epsilon naught. LCM will be R plus A minus A. First term will be minus R plus A. The second term will be plus R plus A. So minus R and plus R will be cancelled. So it will come out to Q upon 4 pi epsilon naught R square minus A square. This is a formula A plus B into A minus B. And minus R plus R will be cancelled out. You will get to A. Now Q into 2A is equal to electric dipole moment and it is denoted by P. So you will get 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square minus A square. Is the general formula. Now for the short dipole. For the short dipole. Or short dipole means point of observation is very large as compared to dipole length. So we will neglect E square as compared to R square. That is R square is greater than A square. B is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught E upon R square. This is the expression for electric potential due to dipole. For short dipole. Now this is the axial point for equatorial point. Is the expression for axial. Now, in the next video, we'll study for the equatorial point. Hello students, just I
पे रूलर पे 0 पॉइंट है ना, 0 मार्किंग है ये, इसको हम 1 इन पॉइंट पे रखते हैं। यहाँ पे बहुत ही केयरफुली रखना है आपको और वर्टिकली ऑब्जर्व करना है, मतलब इसके वर्टिकल में ऑब्जर्व करना है। और अदर इन पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, दैट इज़ 4.1। तो ये 4.1, इसकी लेंथ को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 4.1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सेम एज इसको भी हम इसकी लेंथ को मेज़र कर लेंगे रूलर की हेल्प से। अब यहाँ पे हम इसका जो 0 वाला पॉइंट है या मार्किंग है, यहाँ पे सी पे हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए एकदम वर्टिकल होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो मिस्टेक हो जाएगी। और सेकेंड है बच्चों आपका लगभग 4 पॉइंट पूरा बच्चों 4 है, ये कितना है 4। तो ये 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व कर लीजिए, ये कितना था 4.1 और ये कितना है 0.4 है, 4 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं ना, बहुत ही माइन्यूट जो है डिफरेंसेस है इसकी लेंथ में। अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सी लेंथ विच वन इज लॉन्गर देन अदर। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 4.1 सेंटीमीटर वाली लेंथ क्या है, ये लेंथ ज़्यादा है। किसकी मदद से हमने, किसकी हेल्प से, रूलर की हेल्प से हमने इसको चेक कर लिया बच्चों। इसको हम लोग डिवाइडर से भी कर सकते हैं। डिवाइडर से कैसे करेंगे बच्चों, डिवाइडर का 1 एंड पॉइंट यहाँ पे हम पुट करेंगे। इससे जो हमारी क्या होती है, मिस्टेक जो है कम होती है। और दूसरा वाला बच्चों यहाँ पे हम लोग दूसरे एंड पॉइंट पे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से फिर स्केल से आप इसके मेजरमेंट को चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप रख दीजिए 0 पे और दूसरा वाला 1 पे। तो ये 4.1 है, सही है। और इसी तरह से बच्चों यहाँ पे लिख लीजिए 4.1 सेंटीमीटर और इसकी भी लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका मेजर कर लेते हैं, फिर स्केल की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा छोटी हो रही है, यहाँ पे आ रही। तो यहाँ से फिर हम इसको, ये देखिए 4 आ रही ना, तो 4 पे आ रही है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग इसकी हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग बुक में देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए जिस तरह से डिवाइडर है आपका ये, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, दिस इज रूलर। और बच्चों एक चीज़ और आपको बतानी है कि जो यहाँ पे जो लेंथ हमने अभी देखा कि ये सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 पार्ट है। तो 1 पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं 1 मिलीमीटर। अगर 1 पार्ट को हम सेंटीमीटर में बताना चाहें तो कितना होगा 1, मतलब टोटल का, जैसे कि यहाँ पे 10 है तो 1 कितना हो जाएगा इसका टोटल का कितना होगा 1 वाला पार्ट इस टोटल का। अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये 1 पार्ट है तो 1/10 हो जाएगा। कितना, कौन सा पार्ट है, 10th पार्ट है ना ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10, दैट मीन्स 0.1। तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना, यहाँ पे देख लीजिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। मतलब हम इस तरह से 2 मिलीमीटर को कितना 0.2, 3 मिलीमीटर को 0.3 सेंटीमीटर, मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 2.3 सेंटीमीटर विल मीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। जैसे कि कहीं पे ये लिखा हुआ बच्चों 2.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ये लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा जाए व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर और कितना है बच्चों 5 मिलीमीटर। ये लेंथ हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ और चीज़ें बच्चों हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये हमने कर लिया। अब बच्चों हमारा है थिंक, डिस्कस एंड राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट अदर एरर्स एंड डिफिकल्टीज माइट वी फेस, what kind of errors can occur if viewing the mark on the ruler is not proper, how can one avoid it। तो यहाँ पे जो सही आपकी मेज़रमेंट है, आपको वर्टिकली देखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों हमें क्या करना है वर्टिकल देखना है। अदरवाइज अब अगर इसकी किसी एक पोजीशन, जैसे यहाँ पे शो किया है, आप यहाँ से देख रहे हैं, कहते हैं ना इस तरह से देख रहे हैं, तिरछे, हम लोग कहते हैं तिरछे देखना। रॉन्ग आई पोजीशन ये है, जो आपका करेक्ट आई पोजीशन है। वर्टिकल मतलब ऊपर से आपको देखना है। अगर इस तरफ से देखेंगे तो आप करेक्टली व्यू नहीं कर सकते, ठीक है।
और यहाँ पे कह रहा है व्हाट अदर एरर्स एंड डिफिकल्टीज माइट वी फेस। अगर हम रूलर की हेल्प करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो ये आपका पोजिशनिंग एरर है, ये आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पोजिशनिंग एरर। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। कौन सी एरर होता है, इसे पोजिशनिंग एरर बोलते हैं, पोजीशन की एरर होती है हमारी। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, सही अगर स्केल को आपने नहीं रखा है तो आपकी मिस्टेक होनी है, ठीक है। तो ये आपका रहा कि इसमें एरर कौन सी होती है, तो पोजीशनिंग एरर हो जाती है। कैन वी अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इज देयर ए बेटर वे, लेट अस यूज द डिवाइडर टू मेजर लेंथ। तो हम इस तरह से डिवाइडर से लेंथ, जो कि हमने अभी वीडियोज़ में बताया है, ये सबसे पहले इसका वन आर्म्स का जो पॉइंटर है ए पे पुट करेंगे एंड सेकेंड आर्म जो है अनदर आर्म ऑफ डिवाइडर उसको बी पे पुट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक मतलब कि विदाउट कोई मिस्टेक, कोई एरर, हम लोग इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं यहाँ पे पुट करके, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवाइडर की हेल्प से हम लेंथ का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ का। अब हम लोग बच्चों एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। इसको हम लोग गूगल मीट पे अभी जस्ट आज कंप्लीट करना है 5.1 पूरी एक्सरसाइज को। ओके बच्चों, ओके। और कबड्डी का गेम खेलती थी, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हमें यहाँ पर देखना है। चलिए लेट अस स्टार्ट। लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स। ये फोटोग्राफ देखो, एक सिंपल ग्रैंड मदर्स नहीं है ये, ठीक है। दे आर द ग्रेट प्लेयर ऑफ कबड्डी। द पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर्स। कितनी सिस्टर्स की पिक्चर है, 3 सिस्टर्स की है, ज्वाला, लीला एंड हीरा। क्या नाम है इनके, ज्वाला, लीला एंड हीरा। दीज आर दी 3 सिस्टर्स। दे लिव इन मुंबई, ये मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्ले कबड्डी, ये सब कबड्डी खेलती थी। और टोट द गेम टू अदर्स, और यही कबड्डी का गेम दूसरों को भी वो सिखाती थी। ज्वाला टेल्स व्हेन वी वर यंग, ज्वाला यहाँ पर बताती है कि जब ये यंग थे, वर नॉट अलाउड टू प्ले द गेम, तब उनको कबड्डी खेलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। पीपल सोचते थे गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम, कि गर्ल्स के लिए नहीं होता है ये रफ गेम, इतना भद्दा गेम ये गर्ल्स के लिए नहीं होता है। नोबडी वुड मैरी देम, पीपल क्या कहते थे लोग, कि कोई फिर आपसे मैरी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा। Good morning students, our topic is how to calculate electricity bill। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ टर्म्स मेंशन होते हैं लाइक किलोवाट आवर, जिसको हम KWH भी कहते हैं। KWH मीन्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू 1 किलोवाट ऑफ पावर सप्लाइड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर 1 आवर। मीन्स अगर हम 1000 वाट के बल्ब को 1 घंटे तक ऑन रखें तो हमारा बिजली का बिल 1 यूनिट होगा। किलोवाट आवर और यूनिट एक ही चीज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल को हम सिंपल 4 स्टेप्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, कैलकुलेट द वॉट्स ईच डिवाइस यूजेस पर डे, कि हमारा पर डे में कितने वॉट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड, कन्वर्ट वॉट्स टू किलोवाट, वॉट्स को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। देयर आर 1000 वॉट्स इन 1 किलोवाट। थर्ड स्टेप, डिटरमाइन द किलोवाट्स एन अप्लायंस यूजेस पर मंथ। थर्ड स्टेप में हम जितने भी हमारे किलोवाट्स निकलेंगे उसको हम मंथली कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ, फिगर आउट द कॉस्ट, इसको हम एक फाइंड आउट यूजेस ओवर अ मंथ। डेली यूजेस मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट मंथली यूजेस, मीन्स किलोवाट पर मंथ। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट एनर्जी कंजम्पशन। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, आइटम, वॉट, क्वांटिटी, आवर्स। आइटम में हमने कुछ फैन, CFL, मोटर, आयरन आइटम्स लिखे हुए हैं। वॉट्स, सबके वॉटेज उनके सामने दिए गए हैं। क्वांटिटी और कितने आवर हम वो कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं दिया गया है इस टेबल में। तो फैन के वॉटेज दिए गए 80 वॉट्स, हम 2 फैन यूज़ कर रहे हैं 8 आवर्स के लिए। तो अगर हम फैन के आवर्स कैलकुलेट करेंगे, 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 1280 वॉट्स। CFL को कैलकुलेट करेंगे तो 20 वॉट्स मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी 4 मल्टीप्लाइड बाई आवर्स मीन्स 8 इज इक्वल टू 640 वॉट। मोटर इज इक्वल टू 1 HP मीन्स 746 वॉट। क्वांटिटी 1 मल्टीप्लाइड बाई आवर मीन्स 746 वॉट। आयरन को
1000 वॉट दिया गया है, क्वांटिटी 1 एंड यूज फॉर 1 आवर मीन्स 1000 वॉट। अब हम टोटल वॉट कैलकुलेट करेंगे। टोटल वॉट कैलकुलेट करने के लिए हम इन सब को प्लस कर लेंगे, मीन्स टोटल प्लस करने पे हमारा आया 3666 वॉट आवर्स। ये वॉट आवर्स है। अब हम सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे। इन वॉट आवर्स को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 1000 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया है 3.666 किलो वाट आवर पर डे। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप मीन्स कैलकुलेट ओवर अ मंथली बिल कैलकुलेट करने के लिए हमारे जितने भी आवर्स कैलकुलेट किए हैं उसको हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3.666 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 109.98, या इसको हम 110 यानी 110 किलोवाट आवर्स भी कह सकते हैं। हमारा लास्ट स्टेप टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसको हमें रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट पर यूनिट ये हर स्टेट में अलग अलग रेट होते हैं। ये हमारे बिजली के बिल में भी मेंशंस होते हैं कि 1 यूनिट का रेट क्या है। सपोज हमारा 1 यूनिट का रेट है 6, तो हमारे वॉट आवर्स कितने हुए kWh या 1 यूनिट 110 हमने कैलकुलेट किया था। 110 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल अप्रॉक्सीमेट बिल होगा 660 रुपीज़। अगर हम बिजली के बिल में से अपनी मीटर का बिल कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम बिजली के बिल को ध्यान से देखें तो उसमें करेंट मीटर रीडिंग और मीटर रीडिंग रिपोर्टेड फ्रॉम लास्ट मंथ, उसमें लास्ट मंथ की रीडिंग और करेंट मीटर की रीडिंग दोनों मेंशन होती हैं। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे प्रेजेंट मंथ की रीडिंग हमें पता चल जाएगी। टोटल kWh यूज सिंस लास्ट रीडिंग, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे चार्जेस पर किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट चार्ज। इस तरह से हम टोटल एनर्जी चार्ज को कैलकुलेट कर देंगे। और लास्ट में टोटल एनर्जी चार्ज जो हमने कैलकुलेट किया है इसमें हम फिक्स मंथली चार्ज, ये हमारे बिजली के बिल में मेंशन होता है, उसको प्लस कर लेंगे तो हमारा फाइनल बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे मीटर की रीडिंग 7155 यूनिट हमें शो कर रहा है और ओल्ड रीडिंग है हमारी 7095 और हमें प्राइस दिया गया है पर यूनिट का 6 रुपीज़। हाउ मच विल यू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज? तो सबसे पहले हम कितनी एनर्जी यूज़ हुई है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम न्यू रीडिंग और ओल्ड रीडिंग दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी यूनिट्स आई हैं 60 यूनिट्स। इस 60 यूनिट में हम प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 60 मल्टीप्लाइड बाई 6 और इसमें हम फिक्स चार्ज को प्लस करके अपना बिजली का बिल कैलकुलेट। बारे में जानकारी मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती है, साथ ही शहरी जीवन के विषय में भी जानकारी यहीं से मिलती है। किंतु हड़प्पा सभ्यता की खोज होने पर हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन या शहर के नियोजन में हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से अग्रगामी थी। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित वह उर्वरक प्रदेश था जहाँ पर इस सभ्यता का विकास हुआ जो वर्तमान में इराक देश का एक हिस्सा है। मेसोपोटामिया का अर्थ मेसोस यानी मध्य, पोटामैस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया की भाषा इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अक्कदी भाषा, बाद में अरामाइक भाषा बोली जाती थी। 1400 ईस्वी पूर्व
से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत इमारतें, मूर्तियाँ, कन्ने, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज हैं। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इसी भाग को बेबीलोनिया कहा गया। इसके उत्तरी भाग को, जहाँ पर असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया था, उसको असीरिया कहा गया। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो गया। उरूक, ऊर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं, अतः पशुपालन की तुलना में जीविका के अच्छा साधन कृषि था। दूसरा, व्यापार और पशुपालन भी आजीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफ़ेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया है, जिसको वारका शीर्ष कहा गया। श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे ही, परंतु खनिज संसाधन का अभाव था, अर्थात यहाँ पे खनिजों की कमी थी और इन खनिजों की कमी को पूरा करने के लिए बाहर के देशों, तुर्की, ईरान या खाड़ी के देशों से इन खनिजों को मंगाया जाता था। व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी और यह परिवहन जलमार्गों द्वारा की जाती थी। फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कार्य करती थी। शहरी अर्थव्यवस्था में लेन देन के रखने के लिए ही शायद लेखन कला का विकास हुआ। लेखन कला में देखा जाए तो मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं पाई गई वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। लेखन प्रणाली की विशेषताएं: ध्वनि के लिए कीलाकार या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, जिसमें एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, बल्कि कई व्यंजन या स्वर होते थे। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। सूखने से पहले इन्हें गीली मिट्टी पर लिखना होता था और लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, क्योंकि विशेष भाषा की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में देना होता था। तत्पश्चात गीली मिट्टी को धूप में सुखा लिया जाता था। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में मैं गणेश दीनपाल आप सभी के समक्ष समास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, समास से आप क्या समझते हैं? देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं
तो जो मिलने की प्रक्रिया के पश्चात एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समास। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अच्छा, और जब इसी प्रक्रिया को हम उल्टा कर देते हैं, कहने का मतलब शब्दों को अलग अलग कर देते हैं, तो उसे विग्रह कहते हैं। आप देख सकते हैं, जब शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं। अब बच्चों, एक चीज़ ध्यान देने की है कि इसको हम कैसे करते हैं। तो अब जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं शब्द, कौन कौन से शब्द हैं? एक रसोई है और दूसरा घर है। अब इन शब्दों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो बन जाता है रसोई घर। ये जो रसोई घर बना, ये क्या है? समास है। अगर हम इसको अलग करते हैं तो इसका विग्रह बनता है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, ये है विग्रह। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं तो समास होता है, और अगर हम उसको अलग अलग कर देते हैं तो विग्रह कहलाता है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों, समास के 6 भेद किए गए हैं। मान लीजिए, पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद है द्विगु समास, चौथा भेद है बहुब्रीहि समास, पांचवा भेद है द्वंद्व समास, छठवां भेद है कर्मधारय समास। अब इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हाँ, इनकी अलग अलग अपनी परिभाषाएं हैं, और जब हम उसको पढ़ेंगे गूगल मीट के द्वारा तो समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें आखिर किन किन चीज़ों को लेकर अंतर है, और यही वजह है कि ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों, आइए फिर हम लोग एक एक करके इन समासों की परिभाषा, उनके उदाहरण को समझते हैं और उसके बाद अपने जीवन में उपयोग में लाने का प्रयोग करते हैं। तो आइए गूगल मीट के द्वारा हम सभी पढ़ते हैं। धन्यवाद।
चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ा था कि किस तरीके से हम इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। उसके अलग अलग मेथड्स पढ़े थे, तो उन मेथड्स को हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि हम अपनी डेली लाइफ में सारे मेथड्स को ही देखते हैं, पर हमें नाम नहीं मालूम होता है कि अच्छा इसे ये कहते हैं। तो करके देखते हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा था हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग क्या होता है, इसमें हम करते क्या है कि जो इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं उनको प्योर पार्टिकल से सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग आवर हैंड। तो इसमें होता है क्या है, इट्स जस्ट इन्वॉल्व और सिंपली इन्वॉल्व पिकिंग आउट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस बाय हैंड और separating out impure substances by hand. So here we can see that impure substances are separated from pure substance. Students, next method है हमारा winnowing, जिसके लिए हम wind का यूज करेंगे। विनोइंग में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से हैवियर पार्टिकल्स लाइटर पार्टिकल से सेपरेट होते हैं बाय विंड। तो देखते हैं इसे हम। ये देखिए किस तरीके से आपका हैवियर पार्टिकल, ये हमारा जो था इम्प्योर और प्योर पार्टिकल्स एक में मिले हुए, उससे हमने सेपरेट किया। प्योर पार्टिकल्स जो हैवियर थे ये अलग सेपरेट हो गया है और लाइट पार्टिकल्स लाइक चाक एंड स्टाफ ये सेपरेट हो गए हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम 2 ग्लासेस ले लेंगे। एक हमारे पास एम्प्टी ग्लास होगा और दूसरे ग्लास में हम इस तरीके से आप देख सकते हैं मडी वाटर हमने ले लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला मेथड हमारा सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 2 इमिसिबल पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो जो हैवी है सॉलिड पार्टिकल ये बॉटम में जो है सेडिमेंट हो गया है, कलेक्ट हो गया है, इसीलिए इसका नाम है सेडिमेंटेशन। और ऊपर लिक्विड पार्टिकल्स जिसे हम फ्लोर भी कहेंगे, बॉटम की अपेक्षा जो है ये आपका क्लियर वाटर है, तो ये आपका अपर साइड में कलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट मेथड डिकेंटेशन इसके लिए स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो जो आपका लिक्विड प्योर पार्टिकल्स होता है इन कंपेरिजन टू बॉटम वन, उसको हम सेपरेट कर लेंगे इन अनदर वेसल दैट इज टम्बलर लाइक दिस। So here you can see that in vessel 1 muddy water is present, whereas in vessel 2 there is no muddy water. So like this we can decantate 2 particles from each other. थर्ड मेथड है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड में हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर का यूज़ करेंगे 2 इमिसिबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। डिकेंटेशन में भी हमें जो प्योर पार्टिकल्स होते हैं वो इतने प्योर नहीं मिलते हैं, इसलिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रेनर का यूज़ करेंगे और 2 इमिसिबल पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स अलग आ गए हैं और सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो आपके इस स्ट्रेनर में कलेक्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से, लेकिन स्ट्रेनर जो होता है हमें इतना प्योर जो है नहीं देता है आपका सब्सटेंस, उसमें कुछ मडी वाटर आ जाते हैं क्योंकि इतना ये फाइन नहीं होता है। तो हम इसके लिए फ़िल्टर पेपर यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ़िल्टर पेपर से हम किस तरीके से वाटर को और प्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा इवेपोरेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में, उसको वाटर वेपर मतलब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें हीट की अवेलेबिलिटी चाहिए। यहाँ पे हमने हीट लिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ गैस बर्नर एंड यहाँ पर हम हीट के थ्रू जो है इस वाटर को रख देंगे। अब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। देख सकते हैं किस तरीके से ये वाटर बॉयल हो गया है और वाटर वेपर आप हीट के फॉर्म में निकल रहा है। आप देख सकते हैं क्या होगा, वाटर वेपर गैस की फॉर्म में होता है इसलिए हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है, लाइटली विजिबल होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इस गैस को ऑफ कर देंगे एंड इसे कूल ऑफ होने देंगे। आपको ये दिख रहा होगा किस तरीके से वाटर वेपर यहाँ पे कलेक्ट हो रही है ऊपर की तरफ, लाइट होती है इसलिए। अब ये प्लेट पे कलेक्ट हो जाएंगे वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब हम क्या करेंगे कि इसको कूल होने देंगे। जैसे ही ये कूल होगा वैसे आप देखेंगे कि इस प्लेट पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर गैस है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, विजिबल हो रहा है आपको। धीरे धीरे ये कूल डाउन होगा और कूल डाउन होना ही वाटर वेपर का इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है और धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इस प्लेट पर आपको विजिबल होने लगेंगे।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वाटर वेपर्स छोटे छोटे आ गए हैं। हमें डिपेंड करेगा कि हम कितने वाटर वेपर को वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए आप इस प्लेट के ऊपर आइस भी रख सकते हैं तो जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। तो ये था हमारा कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिल्ट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, अलग अलग फाइन पार्टिकल्स के लिए, अलग अलग पार्टिकल्स के साइज के लिए। थैंक यू।